We're glad to have all of you here today this evening. A very brief introduction about Family First Guidance Center. We are one of a kind center here situated within Juma Masjid of Bombay, within the premises of Juma Masjid of Bombay. And we cater to the mental health needs of the community by offering counseling services for pre and post marital and psychological well being. And in addition to this, we offer matrimonial services as well, and we help people with financial counseling. So, our aim is to bring together individuals and families so that they have and they live meaningful lives. So, in addition, and in the end result is to uplift the community. So, a few ground rules for the day, I would say. Is you are requested to keep your mics on mute and the videos off. We will have a Q&A session at the end of the webinar. So all of you are requested to write in your questions in the chat box and we will address them towards the end, inshallah. Today we have Ms. Alia Patel. Alhamdulillah, she is an experienced international professional certified coach. She's a career counselor as well as a mentor and advisor. Her work mainly focuses on youth coaching, career transitional coaching, and women empowerment. Ms. Alia is always eager to work and learn. Alhamdulillah, she's constantly improving her skills and knowledge. She's dedicated to providing people with the tools and resources that we need to achieve optimal mental health. And she mainly works to empower and mentor women. She offers personalized coaching and mentoring sessions, one-on-one guiding and supporting her clients with solution-focused sessions. So please join me in welcoming Ms. Alia Patel. Ma'am? Yes, I'm there. Assalamu alaikum, everyone. I hope I am audible and visible. Am I audible and Yes, visible, sister? Yes, ma'am. Okay. Before we start off with the presentation, just a few things that we'll be learning to today, this evening, is we'll be focusing on the topic of what is psychological well-being, what it is, why it's important for us, how we can maintain or achieve optimal mental health, and be giving you the podium now. May I know you were lagging, Sister Unaiza? Assalamu alaikum, everyone. Am I audible and visible? Please just give me a thumbs up. Your voice is not audible, ma'am. My voice is not audible? Yeah, now it is. Now? Okay, that's fine. Okay, जी. great. तो बहुत सारे लोग चैट में ये बोल रहे हैं कि हिंदी में बोलें और हम ये सेशन जो है थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा और मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप तक हम क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सेशन जो है आज का इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग Now we all know that nowadays after COVID in India, in Mumbai and in different parts of India, we are all aware कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लोगों ने सुसाइड किया है लोगों ने डिप्रेशन में गए हैं स्ट्रेस हो रहा है कुछ ना कुछ पेन हो रहा है कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है तो ये सब क्या है और ये सब पहले भी होता था लेकिन आज हो रहा है और इस वक्त हो रहा है तो हमको पता चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे पास ग्लोबल अवेयरनेस है थ्रू इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब गूगल एक्सेट्रा एंड अल्हम्दुलिल्लाह an organization like Family First Guidance Center which is also supporting us and helping us in giving the awareness. So Jazakallah khairan Sister Unaiza for introducing me
with such a commendable um, profile and bio of mine through Family First. And first of all, I would like to thank you and congratulate all the participants, which I can see we are all 63 together. Alhamdulillah. So here in the first place, the congratulation is because we are all ready to change. We are all ready to adapt the change. We are all ready to learn something new and to implement and execute in one's life. हम सब कुछ नया करना है और नया सीखना चाह रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए और अपनी फैमिली को और अपने अतराफ अपने माहौल को अपने एनवायरनमेंट को हम सुधारना चाहते हैं और खुद सुधरना चाहते हैं ताकि हमको देख के सारे लोग चेंज को अडेप्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि हम एक वेलनेस अवेयरनेस में आते हैं कि हमको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब ये क्या क्यों हो रहा है, जैसे कि हम बहुत खाना खाने लग जाएं, जैसे कि हम बहुत सोने लग जाएं, जैसे कि हमको बहुत थकावट हो रही है, जैसे कि हमको बहुत अनईजी हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, हाथ पैरों में पसीने आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, कोई चीजों को सुन के, कोई की आवाज सुन के, घर में कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है इस वजह से, या हमारे एग्जाम्स के वजह से, या फिर हमारे कोई यू नो लाइक द पब्लिक स्पीकिंग। आई बिलीव यहाँ पर सारे प्रोफेशनल हैं, कुछ ना कुछ आप सब मेरी तरह, हम फैमिली फर्स्ट की तरह, हमारी टीम की तरह कुछ ना कुछ अवेयरनेस और ट्रेनिंग और लीडरशिप प्रोग्रामिंग में लगे हैं, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। और ये कुछ ना कुछ में ये इतना सारा कुछ बढ़ जाता है, लाइक अ हिप ऑफ वन आफ्टर द अदर, कि हमको पता नहीं चलता कि ये कहां से शुरू हुआ और ये कहां खत्म होगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि हमको ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड हाउ वी कैन फाइंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एंड हु इज द राइट पर्सन। So, sister, you can go ahead with changing the slides, please. And why it is necessary to take care of one's well-being. Now, we are not talking only about mental well-being. It's not everything in the head. To correct myself, it's everything in the head. And when it is too much in the head, it is in the body. It comes in the body. तो जो हमको टेंशन दिमाग में होता है, और हम कई बार इस तरह के अल्फाज भी यूज करते हैं, मैं सोई नहीं बराबर, मुझे बहुत स्ट्रेस था, मुझे टेंशन था, परसों कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, कि आज सुबह कुछ है, मैं उस वजह से बहुत परेशान हूं, तो अब मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, इट्स लाइक ऑल पेन इन द बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कीप सेइंग सच वर्ड्स एंड देन वी आल्सो कीप सेइंग मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मुझे दिख रहा, थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। Like this kind of things we keep on talking to each other in the family, with our friends, with our mother, or with our children. We keep talking such things, but फिर क्या करना है, चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, थोड़ा सा लग रहा है मौसम के हिसाब से कुछ बदलाव है तो कर लेंगे ठीक ठाक, और कुछ मेडिसिन ले लेंगे, एमबीबीएस के पास चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हो जाता है हमको वायरल। ये सब में वायरल क्यों हो जाता है, बिकॉज सोच सोच के, स्ट्रेस के वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से, चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। जो कि इम्यूनिटी क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, हम सबको कोविड पैंडेमिक के दौरान मालूम पड़ चुका है, एंड हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमको रोज मिल रही है, बट यहाँ पर क्या है, अगर ये ग्रो होगा तो ये पूरा ग्रो होगा, ये खराब होगा तो ये पूरा खराब होता है। और हमको इसका बेस्ट एग्जाम्पल, आई वुड नॉट से एग्जाम्पल, हमको इसका बेस्ट हमारे सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी किताब में हमको पता चलता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सूरा में याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चले गई है, तो हमको ये पता चलता है कि हमको मेंटल हेल्थ का कितना ध्यान रखना है ताकि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहे, हमारा पूरा वेलबींग अच्छा रहे। सिस्टर प्लीज इफ यू कैन मूव ऑन विद द स्लाइड। तो अभी हमको इसको कैसे मेंटेन करना है,
Now, to maintain it, that's a big thing. How to maintain? But to maintain it, first we will all have to understand what are the symptoms. Like ऐसे तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे दिए कि हमको रोजमर्रा की लाइफ में क्या होता है. रोजाना हम, for example, the biggest thing for us females, when we get up in the morning, Alhamdulillah, Subhanallah, we pray our Fajr, and then we start doing our house chores, और हम चाय नाश्ता टिफिन वगैरह जो भी बनाना होता है बनाते हैं, and we are high on with our energy, mashallah, and we're like, okay, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत सही है. एंड फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर उसके बाद ये हो जाता है कि सडनली हमारा मूड स्विंग हो जाता है, और सडनली हमको दोपहर में बहुत लो फील हो जाता है, लो ऑन एनर्जी. ये सडनली सडनली डेफिनेटली देर आर हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, fluctuating hormonal changes in the body, but also with regards to the thoughts in the mind. काम करते करते कुछ सोच लेना, काम करते करते या नहीं काम करते करते भी किसी का फोन आ जाना, कुछ बातें निकल जाना, कुछ कुछ 2-3 दिन पहले का कुछ याद आ जाना, एंड देन the thoughts keep on going on, and the cycle keeps on, and it takes us into the past, like एकदम flashback, एकदम कुछ 2 साल पुराना, 3 साल पुराना कुछ ना कुछ याद आ जाता है. और फिर क्या हो जाता है, हमारे थॉट्स हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं. जैसे अगर आपने कोई जोक सोच लिया तो आप खड़े खड़े हंस देंगे, किसी की बात सोच ली परसों की, सुबह की, एक रात पहले की, तो यू विल स्टार्ट गिविंग अप अ स्माइल ऑन योर फेस. सोचते सोचते कुछ याद आ गया. एंड इफ यू आर लाइक thinking something bad, you'll feel very upset, you'll feel very sad, like in the moment you'll feel very agitated and angry कि उस वक्त मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला, अभी मुझे याद आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. So these are known as the emotional understanding. We have to name our emotions. We have to see what we are going through, and then it's the how the PPT is going on. See the name of the emotions. We have to validate. Then the triggers. The trigger happened because we as human being keep on carrying those emotions till the end of the day, or till the end of the evening or night, or even to the next day. वहां पर जाकर उस वक्त इमोशनल रेगुलेशंस हमारे मैनेज नहीं कर पाते हम, और वहां पर ही हमको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उस पूरे दिन में, उस पूरे घंटे में, उस पूरे वक्त में हमारे साथ और भी दूसरी एक्टिविटीज होती है, किसी के साथ कोई कॉन्वर्जेशन, कुछ काम, कुछ मीटिंग, बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशन, खुद के साथ कुछ आज इंपॉर्टेंट था, और हमारा सारा इमोशन जो हमारे थॉट्स आ गए थे सुबह या दोपहर में, वो सारा इस जगह पे निकलता है जहां पर हमको नहीं देना चाहिए, जहां पर हमको वल्नरेबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी, शो नहीं करना चाहिए था, रिमूव नहीं. एंड वी वर थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि नहीं, आज तो हमारा फलाना डे है और बहुत कुछ है, एंड बच्चों का रिजल्ट है, या कुछ कोई गेस्ट आने वाले हैं, मुझे होस्ट करना है, और सडनली कुछ याद आ गया, कुछ पकाते पकाते, कुछ स्मेल की वजह से. तो हमारे जो सेंसेस भी है ना, आंख, स्मेल, टच, ये जो हमारे सेंसेस भी है ना, ये भी बड़े हमको इमोशंस में मुब्तिला कर देते, इन्वॉल्व कर देते हैं, और हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते. So that is where we have to understand that yes, something is going on, and I must address this in me, because this is going on very often. ये बहुत बड़ा है, और कुछ तो है जो मुझे घड़ी घड़ी ट्रिगर करता है, और मुझे कुछ समझना है कि मुझे क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स कमिंग ऑन माई हेल्थ. आइदर मुझे हेडेक पकड़ रहा है, या मैं अपने इमोशंस नहीं चाहते हुए दूसरों पे निकाल रही हूँ. आज अच्छे से बात करनी थी लेकिन गुस्सा कर दिया, पता नहीं चला. अक्सर हम माओं के साथ ऐसे होता है कि वी हैव वेरी व्हेन वी हैव स्मॉल किड्स, वो दिन भर हमको परेशान करते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, और हमारे इमोशंस उन पे निकलते हैं, और रात में अक्सर हम अपने बच्चों के सिराने जाके खूब रो देते हैं कि आज तो नहीं मारना चाहिए था, आज तो डांटी नहीं देना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको डांटी दे दिया, मैंने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बेटे को या बेटी को. ये हमारे साथ अक्सर होता है. आई होप वी ऑल आर गेटिंग रिलेटेबल विद दिस काइंड ऑफ इमोशन
output within our home with our children. Sister, next slide, please. So some people are saying the voice is very low. So mashallah, I'm trying to say very loudly. I hope you can check from your end, please. अब आती है बात रेजिलियंस की. नाउ व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस ये है कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए. सबसे पहली बात एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है. सारी जो फिसाद की जड़ है, the problem is all in the mind. It's thoughts. So basically what we think, we behave and we say that. जैसे कि थॉट्स हमको इमोशंस चेंज करने लगवाते हैं और हम वैसे बिहेव भी करते हैं. When emotions are changed, you are angry, then you will show, that will show up on your face. When you are angry, your tone will change. When somebody calls you, like हेलो बोलना था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, और हमने बोल दिया हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो क्या बोलने का है, अभी मेरे को बात नहीं करने का. Like the verbal, the tonality in itself changes immediately. So thoughts are like, the way you think, the way you behave, and the way you speak. And that's where we don't accept that we need to change. And resilience is something which we have to accept. We have to accept that there is something which needs to be changed. And anything can be changed within ourselves. We cannot change the season. Like now it's monsoon. So mashallah, it's raining. Alhamdulillah. So we cannot change the timing of the rain. We cannot change, but we can change ourselves. What we can change? We can adapt different tools. We can take our decisions and we can work on our decisions. We can take the actions accordingly. Now, how can we do that? By carrying an umbrella, by changing our schedule, by checking up on the weather forecast, and that's how we can take our decision. हम अपने डिसीजन उसी तरह से लेंगे जैसे कि बाहर का मौसम चलेगा. वैसे अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया? हमने अपने आप को चेंज किया, हमने अपने माइंड को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, अपने स्केड्यूल को चेंज किया. टूल्स लिए हमने कि हमको छतरी चाहिए, गमबूट चाहिए, या हमको रेनकोट चाहिए, या हमको कार से जाना है, या हमको ट्रेन से जाना है. सो हमने अपने डिसीजंस को चेंज किया. हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब 4 महीने बारिश है, तो हमको इसी तरह माइंडसेट हमारा चेंज करते हुए, हमारा स्केड्यूल रीस्केड्यूल करते हुए हमको आगे जाना चाहिए. उसी तरह हमको अपनी सेल्फ लाइफ में भी खुद को ही चेंज करना है. वी कैन नॉट चेंज अदर्स. हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं. उनके मूड, उनके इमोशंस, उनके टेंट्रम्स, उनकी टोनैलिटी, उनकी बात करने का अंदाज, या उनकी कोई अच्छी बात, गलत बात जो हमको गलत लगी, या गलत बात जो हमको बहुत गलत लगी, हम किसी को नहीं चेंज कर सकते. हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को हम अडेप्ट कर सकते हैं. इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर हैं कि आज आप सीख रहे हैं, आपको समझना है, आपको जानना है कि ये क्या है और ये ऐसे क्यों हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने पहली सीढ़ी चढ़ी ग्राउंड फ्लोर की कि अब मुझे चेंज होना है. अल्हम्दुलिल्लाह. सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. सिस्टर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड दैट्स हाउ वी टेक आवर गोल्स with resilience. We build up resilience. We accept what is to be changed. We accept how we are. We accept what we have to go through and what we are going through, and how we can adapt different tools. And while doing that, while adapting that, while changing it, हम अपने आप में बदलाव, तब्दीली लाते हुए हमको कहाँ चेंज होना है और हमको कैसे चेंज होना है. तो सबसे बड़ी चीज आती है रिलेशनशिप. रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ, स्पाउसल, मैरिटल रिलेशनशिप नहीं होती है. बहुत और भी रिलेशनशिप है, और मैरिटल रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हमको दुनिया से लेके जन्नत तक का सफर है इंशाल्लाह. तो यहाँ पर रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, यहाँ पर रिलेशनशिप है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हमारे इमोशंस जो हमको हमारी
सोच, हमारी टोनालिटी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारे वर्ड्स सब चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। हम सब गलत बोलने लग जाते हैं और फिर हमको गिल्टी फील होता है। सामने वाला बोलेगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उसको नहीं चेंज कर सकते हम, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और हमको अपने आप को कैसे चेंज करना है? तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप का जो आप पीपीटी देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो, मुझे मुझे ऐसी दो इंपॉर्टेंट चीज लगती है जो कि मिसिंग होती है हर रिलेशनशिप में। वो है कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पेक्ट। हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, सेफ, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये दूंगी मैं आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आई नो आप सबको पता है, और ये बहुत वायरल स्टेटमेंट है, ट्रेंडिंग स्टेटमेंट है, कि हम फ्लाइट में बैठते हैं और जब टर्बुलेंस होता है या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कुछ आगे पीछे होता है, तो सबसे पहले हमको अपना मास्क पहनना है, अपना ध्यान रखना है, और उसके बाद सबका ध्यान रखना है। लेकिन हम औरतों को सिखाया गया है कि सबका ध्यान रखो, अपना ध्यान बाद में रखो, या तो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ये हमारे को सिखाया गया है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। और हमने ये समझा है, इवन 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 फॉर एंड जो हम सीखते हैं वो हम बाय डिफॉल्ट, हमारे बेटा हो या बेटी हो, जेंडर देखकर ये चीजें नहीं होती है, हमारा बेटा हो या बेटी हो, हम उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहली तो बात होती है कि इज्जत। अब इज्जत कब आप दे सकेंगे और ले सकेंगे? जब कम्युनिकेशन बेटर होगा, ब्रॉड होगा, अच्छा होगा, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, खुल के होगा। और दूसरी तो रिस्पेक्ट अपने आप बिल्ड होते जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट होगा। और सेकंड होगा बाउंड्रीज, कि ये हद है। बाउंड्रीज एक हद होती है, एक हद, हुदूद, हमको उसके पार नहीं जाना है। जैसे लोग आज की तारीख में उसको बोलते हैं प्राइवेसी, यंग जनरेशन बोलती है प्राइवेसी, मुझे प्राइवेसी चाहिए। सो एक्चुअली दे मीन दे वांट टू क्रिएट बाउंड्रीज, सब कुछ सबको बताना जरूरी नहीं है, सब कुछ सबको मालूम करना जरूरी नहीं है, और सब कुछ सबका ओपिनियन उसमें होना जरूरी नहीं है, और वहां पर हो जाती है लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, परेशानी। तो ये सारे एक्सपेक्ट भी बहुत काम करते हैं, जो कहां से शुरू होते हैं? थॉट्स। थॉट से शुरू होते हैं और हमको यहां तक पहुंचाते हैं, और इसके आगे भी हमको ये सारी चीजें पहुंचाती है। सिस्टर प्लीज चेंज द स्लाइड प्लीज। आगे कहां तक पहुंचाती है और कैसे पहुंचाती है? हम अपसेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम जाते हैं किसी के पास घर में और डिस्कस करते हैं, या फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं, और फिर अगेन बाउंड्रीज नहीं सेट करते हुए, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होते हुए हम बातें कर लेते हैं। सामने अगर हमारी बहन सुन रही है, या हमारे अब्बा सुन रहे हैं, या हमारे हस्बैंड है, या हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी वो, जिससे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, those who are hearing it, they are perceiving it as what we are saying, because we know as a person, I know as a human being, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको बोलूंगी तो वो तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरी ही बात सुनेगी। दूसरा सॉरी दूसरा एस्पेक्ट, उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है और किस तरह से हो रहा है। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद वो बात जो हमने हमारी फ्रेंड या किसी को बोली, वो फिल्टर होके 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 दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, और इतने सारे हमको कॉल्स आने लग जाते हैं, और इतने सारे हमको ओपिनियंस आने लग जाते हैं, कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। अनदर इमोशन, क्योंकि जितनी बार आप उस चीज की बात करोगे, उतनी बार आपके डिफरेंट इमोशंस बाहर आएंगे। बैड इमोशंस बोल सकते हैं, नेगेटिव इमोशन बोल सकते हैं, इरेशनल इमोशंस बोल सकते हैं, इरेशनल थॉट्स बोल सकते हैं, ये सारा हो जाता है। और हम क्या करते हैं? अपना जो मेन गोल होता है, जो मेन पर्पस होता है हमारा, वो हम भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ पर एक पर्पस के लिए आए हैं, जो हमारी आखिरत है, जो हमको इंशाल्लाह इंशाल्लाह लजीम हम सबको जन्नत में जाना है, हमको जन्नत वाले काम करना है, हमको सिरातुल मुस्तकीम वाले काम करना है। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे पे दुनिया में सब कुछ सीख कर, सब कुछ जान के, हमारा मेन पर्पस भूल के हम छोटे छोटे पर्पसेस में, छोटे छोटे गोल्स में लग जाते हैं, विच इज वेरी गुड। अ पॉजिटिव गोल इज वेरी गुड टू सेट अप,
to enhance oneself, to develop, to go into a self growth development journey, कुछ सीखना, कुछ लर्न करना, एकेडमिक, दीनी तालीम, ये सारा हम भूल के हम दूसरे पर्पस में लग जाते हैं और हमारा मेन पर्पस हम भूल जाते हैं कि हमको एवरीथिंग फॉर द आखिरा, एवरीथिंग टू गेट जन्ना, टू अचीव जन्ना, वो करना है। लेकिन यहाँ हम बहुत अनईजीनेस में आ जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि हमको क्या अकॉम्प्लिश करना है, क्या हमको चाहिए। अब इस पूरे सर्कल में, इस पूरे सर्कल और साइकिल ऑफ लाइफ स्ट्रेस, जो कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, नेवर एंडिंग, बट मैनेजेबल है, एडेप्टेबल है और उस पर काम कर सकते हैं। उसको एक हिप ऑफ कचरे का कूड़ा नहीं बना सकते। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि हमारे घर में कचरे का डब्बा सबके घर में होता है और उसकी जगह किचन में या कहीं बाथरूम के पास होती है। कचरे का डब्बा अगर भर जाता है तो उसको हमको रोज खाली करना है, उसको फेंकना है। कल स्वीपर आता है, उसको दे देना है या हमको खुद जाके फेंकना होता है। लेकिन अगर वो कचरे का डब्बा भरते जाए और स्वीपर आकर ना ले जाए या हमने उसको ना फेंका हो, तो वो क्या करेगा? वो बदबू क्रिएट करेगा। और जो किचन है या आपका जो लिविंग एरिया है या जो भी जगह है, वहां पर वो कचरा स्मेल करेगा। लेकिन आप रोज फ्रेश फूड उसके बाजू में या उस स्मेली फाउल स्मेल एरिया में आप बैठ के खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। आपको वो खाना जो आपका फ्रेश है, जो आपने फ्रेशली कुक किया है या फ्रेशली आपको मिला है, वो आप नहीं खा सकते क्योंकि आपको वो बदबू परेशान कर रही है, आपको अनईजी हो रहा है, आपको प्यूकिंग जैसे हो रहा है, आपको बहुत गंदगी लग रही है। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर उसमें कचरा जमा होते जाएगा और उसमें वो कचरा बैठ जाएगा, वो कचरा घर कर लेगा, तो सोचिए हमको कचरा फेंकने के लिए कहां से कहां जाना पड़ेगा और उसको कितना ज्यादा वक्त लगेगा। सालों का कचरा है और आप फिर बादाम खाओ या विटामिन सी लो या कोई और सप्लीमेंट्स लो या फिर आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ। हम काफी वक्त बोलते हैं, हमारी अम्मी हमसे बोलती है, हमारे बड़े हमसे बोलते हैं, बच्चा कुछ आंख को नहीं लग रहा, हमारे बच्चे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत वीक लग रहा है, ये वो खाना तो खाता है, कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, खाना तो खाती है लेकिन उसकी बॉडी को नहीं हो रहा है। और फिर ऐसे भी डायलॉग्स होते हैं पुराने, हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड मदर्स, हमारी नानी दादी बोलती है, खाना हमको खाए या हम खाने को खाए, बात एक ही हो रही है, लग ही नहीं रहा है। सो दिस इज ऑल वी आर इनटू। एंड व्हेन वी अडैप्ट चेंज, we adapt the tools, we adapt how to manage our emotions and how to regulate oneself, how to control one's emotions and thoughts. We fulfill what we want to. We fulfill, and that feeling is like a medal for us, the accomplishment. But it is also a journey of one after the other. ग्राउंड फ्लोर से 14 फ्लोर पे नहीं जा सकते आप, और 14 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे भी उतरने के लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे डायरेक्ट तो गिर जाएंगे, हड्डियां टूटेंगी, और डायरेक्ट चढ़ तो नहीं सकते, तभी भी हड्डियां ही टूटेंगी। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ, एंड इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है, खाना बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। वैसे ही ये जो सेशन है, इसका भी एक मकसद है जो हम दे रहे हैं कि आपको हम बताएं कि ये प्रोसेस है और इस कचरे को आप खाली करें धीरे धीरे करके, ताकि वो बदबू कम हो जाए और आप जो खाएं इन द सेंस फूड खाएं या इस तरह के वेबिनार अटेंड करके एकेडमिक कंज्यूम करें या क्लास कॉलेज के एकेडमिक को कंज्यूम करें, वो आपको समझ में आए और वो आपके दिल दिमाग जिस्म में वैल्यू पैदा करे और आपको उसके वजह से एनहांसमेंट और फुलफिलमेंट लगे। सिस्टर प्लीज चेंज द स्लाइड। एंड विद दैट what we will achieve, with that we will achieve self acceptance and self esteem. We will achieve the strength, we will achieve what we want to. And when we do all this, the enhancement of oneself, this is actually known as self care.
Self care is not only going to a salon or going to uh, kind of a place where we have like a gathering or chalo dawat hogi or a place of hiking or in a nature just ke by family ke sath thoda nature is good to see, but that's not only the self care is talking positive with oneself. सेल्फ केयर इज नॉट अलाउइंग द नेगेटिव, कोई बुरी चीज को अपने तक आने नहीं देना. हम कितनी बार हमको गलत ही सुनने में मिलता है और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं. ये वेबिनार से ज्यादा या हमारे एकेडमिक से ज्यादा हमारी दीनी तालीम से ज्यादा हम लोगों की बुरी बात को कंज्यूम कर लेते हैं और वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं. सो दिस इज हाउ द सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम थिंग्स वर्क्स अराउंड. एंड इस वजह से, ये सारी चीजों की वजह से, जहां पे हम अपनी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते लेकिन हमारी वीकनेस को ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर हम जाते हैं सेल्फ डाउट, लो एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जहां पर सारी चीज का एक इलाज है कि हम अडेप्ट करें चेंज और उसके लिए हम अपने आप को समझें कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमको राइट प्लेस पे जाना है. Not to talk only with the friends or the family members, but to get into a proper professional person. Now, who is the proper professional person? Sister, please, if you can move the slide. Who is the proper professional person? A proper professional person is someone who will guide you to, who will guide you with the tools, right tools. अगर छतरी लेनी है तो कहाँ जाएंगे? मोची के पास तो नहीं जाएंगे ना. तो जहां पर रेनकोट वगैरह मिल रहा है और जहां पर छतरी की स्पेसिफिक दुकान है वहां जाएंगे, छतरी लेंगे. अगर आपको वायरल फीवर हुआ है तो आप कहाँ जाएंगे? एमबीबीएस के पास. अब वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको वायरल है या कोई डिजीज है. फिर डिजीज अगर डिटेक्ट होता है तो आप जाएंगे एमडी के पास. तो इसी तरह यू हैव टू गो टू द राइट प्लेस, गेन राइट अंडरस्टैंडिंग, गेन राइट लर्निंग, get into overcoming your challenges through these professional people. Who are these professional people? I'm coming to that. But before that, all these things is known as personal growth. Gaining the academic, gaining the dini knowledge, or gaining knowledge through such productive webinars is what is productive growth, is self-development, is personal growth. And through this, we will understand how we are going to achieve, what are our strengths, our weakness, what is our gratitude, how हमको अल्लाह का शुक्र तो हर चीज में करना है, लेकिन हमारे अतराफ के, हमारे एनवायरनमेंट के लोगों का भी कैसे हमको ग्रेटिट्यूड शो करना है, कैसे उनको थैंक्स करना है, कैसे उनको भी हमको हैंडल करना है, मैनेज करना है हमारे रिश्ते के साथ, हमारी कम्युनिकेशन और बाउंड्री सेट करते हुए इंशाल्लाह. सिस्टर प्लीज गो अहेड विद द स्लाइड. And with that, I will also come to, as the slide says, autonomy. Now, what is autonomy? Is something which helps us in, again, when we are with what we are. Acceptance and fulfillment through our journey. Understanding one's personal needs, understanding self-growth, understanding our emotions, setting up boundaries, acting on that, and adapting the change. Why I'm saying this again and again, because अगर change adapt करते हैं तो हमारा decision making power आता है हमारे अंदर, जहां पर हम किसी के मोहताज नहीं रहते कि मैं प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, अब बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब बुखार आती है तो आप क्या करते हैं? आप सुनते हैं कि जाना है नहीं जाना है मुझे एमबीबीएस के पास. आप एक घर में 2 जन ने बोला नहीं जाना है, 2 जन ने बोला जाना है, तो आप क्या सुनेंगे? आप अपनी तकलीफ, अपनी अंदरूनी तकलीफ, अपने बॉडी पेन, अपने बुखार का सुनेंगे, अपने दिल का सुनेंगे और आप जाएंगे. तो दैट इज हाउ यू कैन गेट इनटू डिसीजंस विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. एंड विद दैट, अगेन सिस्टर प्लीज चेंज द स्लाइड. And this is how it leads us to mindfulness. Because when I say कि आपको बुखार आई है तो आपको पता है आपको क्या तकलीफ हो रही है,
क्यों आपको पता है? क्योंकि आपका दिमाग आपके जिस्म पे ध्यान दे रहा है। यू आर वेरी माइंडफुल, यू आर वेरी माइंडफुल कि मुझे किसका सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। क्योंकि अब तो मुझे 104 हो गई है बुखार, 106 भी हो जाएगी, या मुझे 100 पे चल रही है, तो मुझे अपनी दिमाग की सुनना है। वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस में और पॉजिटिव सिचुएशंस में हमको माइंडफुल रहना है। माइंडफुलनेस तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का एज मुस्लिम। As a Muslim, mindfulness is a very important aspect which must be there in our life, while we are also, very importantly, we are also, while in namaz, हमको इतना माइंडफुल रहना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या किस तरह से हमारी नमाज अदा कर रहे हैं। तो हमारी नमाज, हमारी हमारा कुरान पढ़ना, हमारी नमाज पढ़ना ही हमको माइंडफुलनेस का एक सबसे बड़ा सबक सिखाती है, जहां पर हमको पता चलता है कि ये माइंडफुलनेस हमको कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में लेकर आना है और कैसे कैसे हमको अपनी लाइफ में आगे जाना है। क्योंकि ये माइंडफुलनेस सिर्फ हमारे पॉजिटिव जर्नी के लिए ही नहीं है, हमको माइंडफुल इसलिए भी होना है कि अगर हमको कहीं कोई सिम्टम नजर आता है हमारे अंदर, कि हम कहाँ पर हेल्प सीख करें। जैसे कि बीमारी का, मैंने बुखार का आपको एग्जांपल दिया, तो उसी तरह से हमको ये भी पता चलता है कि अगर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कोई स्ट्रेस बॉदर कर रहा है, सप्लीमेंट्स चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, काउंसलर से बात करना है, लाइफ कोच से बात करना है, किससे बात करना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं स्पेसिफिक दर्द हो रहा है, कैसे मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं इसको कितने दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या खाती हूँ, और ये मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, और ये रेगुलर इंटरवल पे ये मुझे किस तरह से परेशान कर रही है, ये बात या ये इमोशंस या ये एक्टिविटी या ये कॉन्वर्जेशन या ये रिलेशनशिप या ये मिलना मिलाना। So you have to be really mindful about yourself, and with that mindfulness, definitely we all have to prostrate in front of our Allah, and then we have to check ourselves also कि हमको अब आगे क्या करना चाहिए। Inshallah. Sister, please help me to change the slide. And yes, there is more to it with work-life balance. Again, there are professionals in this webinars. There are homemakers in this webinar. कुछ घर से हैं, औरतें हैं, सब होम मेकर, कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी जो मेंटल ब्लॉक्स है हमारे काम में हमको तकलीफ देती है। होम मेकर्स हैं, उनका काम तो 24 आवर्स है, खाना भी बनाना है, सोना है, उठना है, सारा कुछ करना है, टेस्टी भी होना चाहिए, घर भी साफ होना चाहिए, खुद भी साफ होने चाहिए। और जो काम करने वाली औरतें हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, ऑफिस में जा रही हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे जैसी प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी काम है घर का भी और बाहर का भी। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें, ये हमारा इमोशंस, हमारा थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारा टोनैलिटी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नॉट सो सेटिंग अप द बाउंड्रीज एंड नॉट सो एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ, ये सारा हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर देता है। हम ना ठीक से घर में काम कर पाते हैं, ना खुद पे काम कर पाते हैं, ना बाहर काम कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी इज लेस, क्वालिटी इज अगेन डिप्राइव हो जाती है। जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमारी क्वालिटी डिप्राइव हो जाती है कि हम प्रोडक्टिविटी खुद के साथ भी नहीं कर सकते, दूसरे के साथ भी नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते कंपनी में, घर में भी खाना जल जाता है या मिर्ची नमक ज्यादा हो जाता है, रोटी जल जाती है, और फिर it's everything together because we pay more attention towards what we don't have to, we consume the negative because it's human psyche. Subhanallah, Allah subhanahu ta'ala has created us, और इंसान का ये एक है, एक इंसानी, आई थिंक न्यूरो डॉक्टर डेफिनेटली ये बात को अच्छे से बता पाएंगे कि ये हमारी रिसर्च कहता है कि ये हमारी इंसान की फितरत है कि हम नेगेटिव पहले ले लेते हैं, पॉजिटिव बाद में ले लेते हैं, या लेते ही नहीं है। हम इतना नेगेटिव कंज्यूम कर लेते हैं अपने खुद के बारे में कि हमको अगर कोई बोलता भी है कि हम अच्छे हैं या हम इस कलर में अच्छे लग रहे हैं, बट हम मानते ही नहीं उस बात को, और हम लेना ही नहीं चाहते बिकॉज हमने इतना नेगेटिव कंज्यूम कर लिया, और फिर वही साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और उसमें हम हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर देते हैं। और इसके ऊपर हमको कैसे काम करना है, ऑल इन ऑल प्रोफेशनल हेल्प विच विल
help us, which will support us in understanding our emotions and adapting tools to manage and regulate our emotions. Inshallah. Sister, please help to change the slide. And yes, it says, the slide says, practice gratitude. Now, practicing gratitude definitely ये हम सबको सिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरह से नहीं बोलते हैं जिस तरह से विथ फीलिंग्स आना चाहिए. जैसे कि आज हमने कुछ अच्छा ड्रेस पहना और हम अच्छे से तैयार हुए, किसी ने हमारी तारीफ की, तो हम वो जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है. आई मीन दैट अल्हम्दुलिल्लाह. एंड जस्ट सेइंग कैसे चल रहा है आलिया, कैसे चल रहा है, alhamdulillah, that is not the alhamdulillah. Even I do the mistake. Even I'm learning how to be gratitude towards my Allah subhanahu wa ta'ala, and of course to then the people who I'm attached in this dunya. And while saying that alhamdulillah, I should be feeling from my heart, and that alhamdulillah should not only be from my mind, it should be from my heart, from my qalb. एक ऐसा alhamdulillah जो मेरे अच्छे में भी निकले और मेरे बुरे वक्त में भी निकले, और मैं कदर अल्लाह बोलकर उसमें आगे निकलूं, और मैं उसमें आगे निकलते वक्त मैं अपने आप को सवारूं कि मुझे ये मेरा दीन और दुनिया का इल्म किस तरह से आगे लेके जाता है, मैं कहाँ उसको अप्लाई करूं और उस तरह से मैं अपनी डेली लाइफ को एग्जीक्यूट करूं, बिकॉज आई विल बी द वन विल बी सेटिंग अप द एग्जाम्पल इंशाल्लाह ऑफ बीइंग अ बेहतरीन मुस्लिम, इंशाल्लाह. I mean, we all, inshallah. Yes, sister, please change the slide. And yes, overall, what we discussed is seeking knowledge, practicing gratitude, open communication, act of kindness, quality time with family, healthy sleep habits, engage in hobbies, celebrate small wins, presence. All these nine vocabularies here are very important, very important. ये पूरे 9 vocabularies के ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक एक सिंगल वेबिनार दे, बिकॉज ये इतना डीप डिटेल बातें हैं कि इसको डेफिनेटली समझने के लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए, और अच्छी खासी ओपन ब्रॉड माइंडफुलनेस के साथ, ओपन ब्रॉड माइंड और माइंडफुलनेस के साथ हम यहाँ पर शामिल हों इंशाल्लाह किसी दिन. बट टू मेक इट अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, आज जैसे आप बैठे हैं तो हम सब बैठे हैं, सीख कर रहे हैं, नॉलेज सीख कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे से करने की कोशिश में लगे हैं कि हम हमारी बात आप तक ठीक तरह से पहुंचाए. एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको सब पता है, सदका जारिया जो हमको देना चाहिए, चैरिटी, और ये इसके अलावा इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, दिस इज अ सुन्ना विच वी ऑल नो. लेकिन हम घर में ही, हेलो हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, मेरा झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे बेटे के साथ या मेरी बेटी के साथ, और किसी का फोन आ गया तो मैं उसको बोलूंगी या अस्सलाम वालेकुम या. बट अगर उस वक्त मेरे हस्बैंड का फोन आ गया या मेरी मम्मी का फोन आ गया, चले हेलो हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, अरे मेरा दिमाग बहुत खराब है. सो इट गोज लाइक दैट. So there are many things we can talk about that, inshallah. So please next slides. And yes, with all these things, these are the tools which we are giving into the PPT, like physical health, well-being, कैसे maintain किया जाए, with all the adaptability towards change, the tools which we are talking about, like improve sleep. तो पहले तो हमको देखना है symptoms क्या है, फिर professional help सीख करनी है, हमको टूल्स फाइंड करने हैं कि क्या हम अडेप्ट कर सकते हैं, और उसके साथ इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत सारी आती है, हमारा न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम वगैरह जाना या वॉक करना, सिंपल रनिंग करना या नेचर में चलना फिरना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको ये सारा हमारे लाइफ में डेली रूटीन में लाना होता है. एंड दैट दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगेन if we can talk about this inshallah in the next series of our webinars, so we will definitely go ahead with more elaborative discussion inshallah. Sister please. Now what is the main important thing, whom to find, where to find the professional help. This is what is known as the holistic healing. ये नहीं है कि साइकियाट्री के पास जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ या काउंसलर के पास जाओ या मेंटर के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ. आपको सही गाइडेंस, सिस्टर प्लीज इफ यू कैन चेंज द स्लाइड,
आपको सही गाइडेंस ये प्रोफेशनल टीम में मिलेगी, जहां पर एक बहुत ये स्लाइड है, इंशाल्लाह अगर किसी को और डीप में पढ़ना है तो हम फैमिली फर्स्ट से कहेंगे कि इंशाल्लाह हमारी टीम से आपको शेयर करें ये स्लाइड, जहां पर हमने ये डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि साइकेट्री, साइकोथेरेपी और लाइफ कोचिंग मेंटरशिप क्या है। तो ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि साइकेट्री एक डॉक्टर होता है, एमडी डॉक्टर होता है, जो कि आपको ये चीज में मदद करता है डायग्नोस करने में, जो मेडिकल हेल्प होती है, क्लिनिकल मेडिकेशनल प्रिस्क्रिप आई वुड से मेडिकेशनल प्रिस्क्रिप्शन के साथ होता है, जहां पर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है या बहुत पास्ट ट्रॉमा है, हेल्यूसिनेशन वगैरह है, आवाजें आ रही हैं, या बाइपोलर डिजीज वगैरह है, तो उसके लिए बेशक हमको साइकोथेरेपी के बाद साइकेट्री के पास जाना पड़ता है, जहां पर मेडिसिन काम करती है थेरेपी सेशन के साथ। और साइकोथेरेपी में साइकोथेरेपी भी डॉक्टर होते हैं जो प्रिस्क्राइब नहीं करते मेडिसिन, लेकिन वो आपको हेल्प करते हैं कि आप एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, जैसे हमको कुछ बॉडी में मार लग जाती है और सोरनेस आ जाती है या मूंछ लग जाती है, तो हम जाते हैं फिजियोथेरेपी के पास, फिजियोथेरेपिस्ट हमको एक्सरसाइज वगैरह से हीलिंग दे देते हैं, कपिंग वगैरह करके, ड्राई नीडलिंग करके। लेकिन अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या वो जो हमको मार लग गई है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पट्टी वगैरह लगाने, एक्सरे वगैरह निकालते हैं, तो वो ऑर्थोपेडिक होता है। तो फिजियोथेरेपी जब काम नहीं करती हमको और अंदर फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास। उसी तरह साइकोथेरेपी अगर काम नहीं कर रही है और साइकोथेरेपिस्ट बोलता है या बोलती है, तो हमको साइकेट्रिस्ट के पास डेफिनेटली जाना होता है, क्योंकि फिर मेडिसिन से हमारी हीलिंग साथों साथ एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन वर्क्स टुगेदर। एंड देन कम लाइफ कोचिंग एंड मेंटरशिप. Life coaching is something which is not for bipolar people or hallucination or such kind of disease, but a life coach can help you to understand your present and help you to move in the future. Life coaching doesn't take you in the past, or he or she will not discuss much about the past. A past means 5 साल 10 साल पुराना, 20 साल पुराना गम लाइफ कोच नहीं उसको हील कर पाएंगे, बट लाइफ कोच अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको वो 5 और 10 साल पुराना डिप्रेशन है या ट्रॉमा है या कोई इस तरह का डिसऑर्डर है, तो वो आपको गाइड करते हैं साइकोथेरेपिस्ट के पास। वो इस तरह का काम करते हैं। और लाइफ कोचिंग में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम में हैं, जैसे 5 महीने से, साल भर से, 6 महीने से, कुछ 1-2 अरसे से, तो आपको वो वहां से उठाकर फ्यूचर की तरफ, आपके फ्यूचर गोल अचीव करने की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस होता है फ्यूचर ओरिएंटेड गोल सेटिंग फोकस। ये लाइफ कोचिंग काम करते हैं। और मेंटर क्या करते हैं? मेंटर इस लाइफ कोचिंग के गोल सेटिंग के काम में आपका ग्रोथ देखते हैं, आपका ग्रोथ पीरियड देखते हैं कि आपने ए से बी, बी से सी, सी से बी का ग्राफ आपने किस तरह से जर्नी आपने अचीव की, नहीं की, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो मेंटर आपको पार्टनर करते हैं। मेंटर वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, अपने एक्सपीरियंस पीपल आर मेंटर विथ रिसोर्सेबल पीपल। सो दिस इज द डिफरेंस, अ मेजर डिफरेंस, जहां पर ये समझाना इसीलिए जरूरी था कि लोग लाइफ कोच और मेंटर से भी बात करने में हिचकिचाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि हमको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों बात करें। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो लोग गाइड करते हैं आपको सही जगह पे, साइकोथेरेपी के पास। जैसे फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आपको कुछ तकलीफ है, आपका ट्रेनर, जिम ट्रेनर या आपकी पर्सनल योगा टीचर ट्रेनर कुछ बोलती हैं ये सोरनेस है, मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकती, मैं ये सोरनेस को नहीं, तो आप किधर जाएंगे? फिजियोथेरेपी के पास। फिजियोथेरेपी अगर डिटेक्ट करता है कि स्वेलिंग नहीं जा रही है, एक्सरे निकालो, तो आप किधर जाएंगे? ऑर्थोपेडिक के पास। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, मेंटल हीलिंग एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग वर्क्स। एंड विद दैट आई होप कि आप सबको ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। और इसके लिए हमको सही जगह पे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? फैमिली फर्स्ट इज वन ऑफ द प्लेस विच इज द बेस्ट प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह,
by the team of Family First, by the founder of Family First. We know where we have to approach. Family First में आपको वो टीम मिलेगी, लाइफ कोच, मेंटर, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ये प्रोफेशनल पीपल हैं। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखते हैं। जैसे कि आप एक एमबीबीएस के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको दवाइयां देते हैं, वो जानते हैं आपको क्या तकलीफ हो गई है, लेकिन डॉक्टर दूसरे पेशेंट को नहीं बताता कि आपको क्या तकलीफ हुई है। डॉक्टर ये नहीं बताता। तो डॉक्टर भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है, वो आपकी रिपोर्ट, आपकी बात उस कमरे में सहमत रखता है, ताकि थोड़ी ना किसी को पता चले कि आप यहाँ रूम में आई थी और बाहर गई तो क्या हुआ। उसी तरह लाइफ कोच, मेंटर, साइकोथेरेपी, साइकेट्रिस्ट, ये कॉन्फिडेंशियल पीपल है, प्रोफेशनल पीपल है, ट्रेन्ड है, एकेडमिकली अक्रीडिएटेड डिग्री होल्डर्स होते हैं, जिनको पता होता है क्या बात करनी है, कैसे करनी है, और इनको क्या तकलीफ है, तो हम इनको कहाँ से कहाँ लेके जाएं। And definitely it's a process, dear sisters. It's a process. It's not everything in all in on together. और हमको ये देखना है कि अब ये जो स्लाइड है, ये पीपीटी है, इसमें से आप और भी बहुत सारे सिम्टम्स मैंने आपको बता चुकी हूँ while we were in the process of दिस वेबिनार, कि आपको क्या क्या फील होता है। लो ऑन एनर्जी, ईटिंग टू मच और टू लेस, और स्लीपिंग टू मच टू लेस, हियरिंग ऑफ वॉइस, इनएबिलिटी ऑफ डूइंग डेली टास्क विच इज नोन एज लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत डिले कर रहे हैं हम चीजों को, ध्यान नहीं दे रहे, मेमोरी नहीं हो रही है बराबर, एक चीज याद होती है, एक चीज नहीं याद होती है, चिड़चिड़ हो जा रहा है, स्किन इरिटेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, हेयर लॉस है, बहुत सारी चीजें। हम औरतों में तो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, और एक कंफ्यूजन हो जाता है, हम डर जाते हैं किसी से। फियर इज अ वेरी बिग hurdle, I would say, कि किसी का fear होना। And that's with that note, I would just request you all, since you are all here, subhanallah, to understand and learn, and I would say now execute your learning. आप अपनी learning को अपने life में अमल में लाएं और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, जो फैमिली फर्स्ट गाइडेंस से आपको मिलेगी इंशाल्लाह लजीम। जहां पर ये पीपीटी आप देख रही हैं, ये स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रही हैं कि फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर आपको क्या क्या काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, कौन से आपके लाइफ के एरिया में आपको सपोर्ट कर सकता है, विद द मेंटर्स, with the psychologist, with the psychotherapist, with the life coaches, and with psychiatric support, financial help, financial guidance, financial help in the sense financial guidance की भी support आपको मिलेगी। सुबहानल्लाह। तो ये सारे एरिया में हम काम करते हैं और हमारी टीम में ये सारे प्रोफेशनल मौजूद हैं जो आपको सेशन के साथ ले सकते हैं। बट अगेन सिस्टर्स, 1 घंटे में 20 साल की तकलीफ या 1 घंटे में 5 साल की तकलीफ, 2 साल की तकलीफ नहीं दूर होती। जैसे तकलीफ बढ़ने में सालों लग गए हैं, तकलीफ कम करने का भी एक प्रोसेस होता है, जहां पर उस लर्निंग जो हम लर्न करके तकलीफ में आ गए हैं, उस लर्निंग को अनलर्न करने के लिए और रीलर्निंग न्यू थिंग्स, उसका वक्त होता है। And with that, inshallah, I will end this session from my end, and I will be here for the Q&A, inshallah. So yes, Sister Uneza, you can take up the call.